Okay, one more question we are going to see from your textbook exercise में से question number 2. Question number 2 goes like this. First of all, they are saying enthalpy of formation. What they said is enthalpy of formation. Let us understand first point. What does mean by enthalpy of formation? बराबर है? Okay. Now, enthalpy of formation means if you form any compound, let's say CO2. Now CO2 is a compound which is made up of two elements. One is carbon, second is oxygen. If we make 1 mole of any compound from its constituent elements in standard form, what I meant by that, we had carbon dioxide gas, we are making 1 mole of that from its constituent element, that is carbon and oxygen, and they are supposed to be in standard form. Matlab carbon has to be solid, oxygen has to be gas. If you do that reaction, during that reaction change in enthalpy, ये रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. उसकी जो भी वैल्यू आती है, सीधी भाषा में बोलूं तो अगर एक कंपाउंड को हम उसके कंस्टिट्यूएंट में से जब बनाते हैं और जब बनाया तब कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, जो भी वैल्यू आती है, सपोज इसकी वैल्यू x है, देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, x. Is that understand what is enthalpy of formation? That's the first point. Second point, remember, okay, enthalpy of formation for elements is always 0. ओके मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जैसे कि लेट्स से सोडियम मेटल, तो भाई वो अकेला एलिमेंट है, वो उसको किस में से बनाओगे, एलिमेंट तो खुद एलिमेंट ही है, उसको बनाने का और कोई रिएक्शन है ही नहीं. सो उसकी एंथैल्पी बाय डिफॉल्ट कितनी लेंगे. ओके सेम वे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस 0. जितने भी एलिमेंट्स है हमेशा कितने लोगे उसकी enthalpy of formation 0. Okay, ये एक theoretical point था. Before we start this numerical, let me explain that theoretical point. I had explained you, and in this numerical also we are going to write down this as a note. I'm keeping it over here. Okay, correct or not? It's a separate note over here. ठीक है, बराबर है. Come to our question. What they said, the first point we have understood. Enthalpies of formation किस किस की दे रखी है उन्होंने, कार्बन मोनोक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O गैस एंड डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4 गैस. 4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है, बराबर है. वो 4 की जो है हम लिखेंगे इस तरीके से. सबसे पहले गिवन डेटा, दे हैव गिवन डेल्टा HF of carbon monoxide gas, enthalpy of formation of carbon dioxide, enthalpy of formation of, write in the same sequence as they have given you. Correct? I do believe I have not missed the sequence. If I have missed, please let me know about that. Have I missed it over here? No. Okay. Then उन्होंने values दे रखी है, वही values हम यहाँ पे डालेंगे. सी ये सीक्वेंस दी CO, CO2, N2O, N2O4, वही सीक्वेंस में लिखी -110, -393.81, 82 and 9.7. Write down the same sequence. -110, -393.81, 82 and 9.7. All of them, they are measured in kilojoule per mole. Correct? Given data is this. Then after writing given data, in our answer we should know what question or the reaction they had given. क्वेश्चन में आगे ये दिया था
calculate delta HF for the following reaction. For this reaction they are asking. N2O4 plus 3CO gas gives you N2O plus 3CO2 gas. They are asking find the change in enthalpy. Okay, reaction कौन सा था? Reaction was this. N2O4 gas plus 3CO gas gives N2O gas plus 3CO2 gas. And they are asking us ये reaction के लिए delta H find करो. Okay, we are going to learn one simple and a new formula. For any reaction, change in enthalpy is given by one formula called total enthalpies of product minus total enthalpies of reactant. Okay, normally I don't write such big formula. I use simple symbolic form. Delta H of reaction टोटल की जगह पे ये फॉर्मूला सिंबल यूज करते हैं. इसका मतलब है सिग्मा समेशन बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. आई राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म माइनस. सो नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्म. आई विल नॉट राइट, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, वही चीज सिंबल में लिखूंगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इसका मतलब ये होता है. करेक्ट और नॉट? ठीक है. अभी कितनी प्रोडक्ट्स थी आपके पास? तो मतलब ये हुआ मुझे ओके N2O प्लस CO2 उन दोनों की एंथैल्पी को ऐड करना है. दैट इज द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. बिकॉज यहां पे दो प्रोडक्ट है मेरे पास. बट वेट, खाली वो नहीं करने का. एट द सेम टाइम यू नीड टू लुक एट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. CO2 का कोएफिशिएंट कितना है? 3 और N2O का 1. सो सेम कोएफिशिएंट से आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है. यहां पे 1 आएगा और यहां पे 3 आएगा. सो आई एम डूइंग दैट. यहां पे 1 और यहां पे 3. अगर 1 को नहीं लिखते हो तो भी चलता है. बराबर है कि नहीं? ओके. सेम में माइनस अभी क्या लेंगे? एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. कौन कौन से रिएक्टेंट है आपके पास? ओके. और N2O4 आई थिंक सो 1 दिया है एंड CO 3 दे रखे. उसकी वैल्यूज हमारे पास ऊपर है यहां पे. लेट्स पुट दिस वैल्यूज. ये वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे और यहां पे. करेक्ट और नॉट? विल डू दैट. N2O की वैल्यू 82. CO2 की वैल्यू माइनस, लेकिन 3 टाइम से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 393.81. N2O4 की 82 और CO की आई थिंक सो उन्होंने दे रखी है माइनस 110. आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने गलती की. यहां पे N2O4 की 9.7 है और मैंने लिख दी है 82. तो उसको मैं इरेज कर देता हूं. कई बार जानबूझकर ऐसी गलती करता हूं. आज नहीं की थी लेकिन कई बार करता हूं. पता चलता है कौन सा स्टूडेंट ध्यान दे रहा है. आज नहीं की थी ऐसा. आज जेन्युइन गलती हुई थी. बराबर छे. Please get me the answer. 1099. I don't want final answer. Thank you. Let me use my calci. My calci is over here. 3 times 393.81. 1181.43. 9.7 minus 330. Okay,
फाइनल आंसर इसका दीजिए, टोटल कीजिए। लेकिन एक चीज जरा ध्यान में रखना, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट को ओपन करते हो आगे नेगेटिव साइन है, वो गलती मत करना। व्हाट इज द फाइनल आंसर? प्लीज गिव मी द टोटल फाइनल आंसर। माइनस 779.1 3 किलो जूल। Is it understood?